Hello students, once again welcome to my class. I am Anjali Patel. Today we'll continue with the first chapter of geography, that is our environment. But before that students, let's discuss the answers that I have given you in our first part of the video. So let's continue. So students, that day your first homework question was, what is environment? So the answer of this question is, as you have seen in the first page of your chapter, the word environment comes from the French word environner, which means neighborhood. Environment is everything that is around us, which can be living or non-living things. And now your second question. Your second question, name all the domains of the earth. You have seen the answer in the image also, and the first page of your chapter also. The answer is, there are four main domains of our environment. That is, the first one is the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere, the biosphere. Now students, the third question. Third question was, what is the natural environment? Natural environment is the combination of all living and non-living components of the environment that are naturally formed. Hope you have done your answers. Now we will continue with our next topic of this chapter, that is ecosystem. So what is ecosystem? All the plants and animals in a particular area considered together with their surroundings are called ecosystem. तो जो भी प्लांट्स एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में उनके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें एक साथ मिलकर क्या कहलाती हैं? इकोसिस्टम. And one more definition of ecosystem is, all living organisms in this world are interdependent with each other and the surrounding. So the relationship between the living organism with each other, or the relationship of living organism with their surrounding, is called an ecosystem. So now the examples of ecosystem. So example of ecosystem is aquatic ecosystem, desert ecosystem, forest ecosystem, human ecosystem, mountain, oceans, etc. So students, ecosystem has no fixed size. It can be big, it can be small, and it can be of different types. So an ecosystem can be natural or man-made. For example, natural, just like ocean is an example of natural ecosystem, whereas aquarium is an example of man-made ecosystem. So aquarium can be considered as an ecosystem also. Now one more point of ecosystem is the study of ecosystem. The study of ecosystem is called ecology. Now our next topic is human environment. So students, as you can see the heading human environment, and many topics I have written, so I'll explain these topics. So first, what is human environment? The human environment includes all the humans, their interactions, their activities, and their disturbance with nature. So स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इंसान की ज़िंदगी में लगातार चेंजेस होते आए. उसने लगातार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स से मीट करने के लिए बहुत सारे बदलाव किए, चेंजेस किए, जिसको हम पॉइंट्स में जानेंगे. दैट द फर्स्ट वन, लाइक दे इन्वेंटेड द फायर एंड द व्हील. जैसे कि अगर हम हिस्ट्री जानते हैं तो हम हिस्ट्री पढ़ा है तो हम जानते हैं कि पहले इंसान को आग जलाना नहीं आता था, पहिए का खोज नहीं हुआ था, फिर उसने फायर का इन्वेंशन किया, व्हील इन्वेंट किया टू मीट द नीड्स ऑफ देयर लाइफ. नाउ नेक्स्ट, दे डिस्कवर्ड फार्मिंग. बिफोर दैट ह्यूमन्स वर हंटर एंड गैदरर्स. वो सिर्फ हंटिंग करते थे और खाने को इकट्ठा करके खाते थे. उनको खेती करने का तरीका नहीं
पता था, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने फार्मिंग डिस्कवर की और खेती करना सीखा और वो एक जगह पे सेटल्ड हो गए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल माइग्रेटिंग कॉलोनीज। फिर वो एक जगह पे सुव्यवस्थित होकर रहने लग गए छोटे छोटे माइग्रेटिंग कॉलोनीज़ में। जैसे हमने पढ़ा होगा कि पहले लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे। नाउ द फोर्थ वन इज़ द स्मॉल कॉलोनीज टर्न इनटू विलेजेस। बाद में यही छोटे छोटे कॉलोनीज़ किस में टर्न हो गए, विलेजेस में, बड़े बड़े गाँव में बदल गए। एंड द विलेजेस टर्न इनटू सिविलाइजेशंस। बाद में यही गाँव सिविलाइजेशंस में कन्वर्ट हो गए, सभ्यताओं में, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। द लास्ट वन इज़ डेवलपमेंट इन साइंस। स्टूडेंट्स, विद द टाइम as the population grew and science developed, the consumption also grew, which led to industrialization. जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुआ, इंसान को चीज़ों को और कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ी, वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। इन द प्रेजेंट टाइम न्यू इन्वेंशंस टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट एवरी डे। हर दिन कुछ ना कुछ हम नया खोज रहे हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें और ज़्यादा डेवलप बना सकें। And the humans are changing the environment rapidly like this. Now students, our next topic is pollution. What is pollution? We all are aware about the pollution. हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। Pollution is where something is added to the environment that is harmful or poisonous to living things. Pollution क्या है? जब इंसान एनवायरनमेंट के साथ कुछ हार्मफुल चीज़ें ऐड करता है जो कि लिविंग थिंग्स के लिए पॉइजनस है, उसके लिए नुकसानदेह है, जहरीली है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज़ ऑफ 4 टाइप्स। बेसिकली पॉल्यूशन 4 तरीके के होते हैं: एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, और सॉइल पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, द अर्थ कैन हील इट्सेल्फ जस्ट लाइक द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि हमें जब कोई चोट लग जाती है तो हम कुछ प्रिकॉशंस लेके, कुछ मेडिसिन्स लेके अपने बॉडी को, अपने चोट को फिर से ठीक कर लेते हैं। सेम लाइक दैट अर्थ कैन हील इट्सेल्फ। जो भी हम अर्थ को हम पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो उसको खुद से ठीक कर सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाएं और जो भी चीज़ें हार्मफुल हैं उनको ठीक किया जाए, सुधारा जाए। लाइकवाइज ह्यूमंस आर डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इट इज़ अ बैलेंस दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन ह्यूमंस मेक डेवलपमेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग और हार्मिंग द एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज़ इकोलॉजिकल बैलेंस? जब इंसान कोई भी चीज़ें डेवलप करता है बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, उसको डिस्टर्ब किए, तो ये कहलाता है, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट आर दैट cannot be continued at the same level, rate, etc. जैसे कि डेवलपमेंट वी मेक while disturbing and damaging the environment। ऐसा कोई डेवलपमेंट जिसको करने की वजह से हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, टू मीट द इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स एंड डिमांड्स, नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल। इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि टू मेक अ रोड वी क्लियर लैंड फॉर कटिंग द ट्रीज़। जैसे कि सड़कें बनाने के लिए हम पेड़ काट रहे हैं, डैम बनाने के लिए वी डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। डैम बना के हम नदी का जो प्राकृतिक बहाव है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, सॉइल इरोजन इससे बढ़ रहा है, एंड making dam can cause flood also. So these are some causes of reasons of pollution. All these natural students, now
we can see that there are students, we can see that not only these causes, but some more causes are there for, which are responsible for pollution, just like cars and other vehicles create a lot of air pollution and noise pollution. Waste from industries create a lot of water pollution. All products that are manufactured in a factory are packed and transported to big cities and remote places in the world. This takes a lot of natural resources to do so, which in turn creates a lot of pollution. Now, environmental degradation. What is environmental degradation? The overuse of natural resources. हमारे पास प्राकृतिक resources एक लिमिटेड मात्रा में ही मौजूद हैं, या फिर हम कहें कि उनकी स्कैरसिटी है, कमी है, और जब हम उसको ओवर यूज़ करते हैं, ह्यूमंस उसको द्वारा उसको ओवर यूज़ किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब पर्यावरण का पतन या पर्यावरण में गिरावट. Now our last one topic is prevention of pollution. Prevention of pollution, what is the meaning of prevention? अब हम pollution को किन किन तरीक़ों से ठीक कर सकते हैं? So there are many ways. We'll continue with some of them. तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? The first one is sources reduction. जो भी हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं उनको हम प्रॉपरली यूज़ करके, उनको उनकी यूज़ को कम करके, जैसे कि द यूज़ ऑफ वाटर एंड केमिकल इनपुट्स, वी कैन प्रिवेंट पॉल्यूशन. द नेक्स्ट वन इज़ recycling. What is recycling? Means recycling is the process of converting waste material into new material. हम जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको कोई न्यू मटेरियल में कन्वर्ट करके उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन कम हो. डिस्पोजल, किसी भी सामान को, जो भी वेस्ट है उसको सही जगह पे सही ढंग से डिस्पोज करके भी हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. एंड एडॉप्शन ऑफ लेस एनवायरमेंटली हार्मफुल पेस्टिसाइड्स. जैसे कि आजकल हम खेती में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके यूज़ को कम करके भी हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं. बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या कम करके. प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, प्लांटिंग ट्रीज़, पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव इको फ्रेंडली फ्यूल्स, जैसे कि हम डीजल पेट्रोल्स यूज़ करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसकी जगह पे हम CNG यूज़ कर सकते हैं. एंड प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन्स बैन करके उसका यूज़ कम करके भी हम पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हेयर द चैप्टर इज़ फिनिश्ड. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड द होमवर्क क्वेश्चंस आर देयर. You have to complete it. So students, these are your homework questions for today. We will discuss the answers in our next video. Till then, take care, read the chapter properly and complete your answers. Thank you.